So I'll tell you, पहला साल तो मेरा I was in electronics engineering. I wanted to go into computer science, but as rank stated, अभी मैं नहीं जा सकती थी. So first year में I kind of grinded a lot. Then we got an email कि हाँ you have gotten selected. I was the only one in my entire batch जो हुई थी select. तो I would genuinely say Siemens has absolutely changed my life. I still remember मैं 8th class में थी I guess और मैंने Kahoot का interface देखा था उस टाइम पे. It was so interactive and so intriguing to me at the same time because सिर्फ ये academics वाला side and मतलब ट्यूशन फी नहीं भरते वो तुम्हारी. मतलब मैं जितने भी इवेंट्स के लिए गई हूँ उनके जितने भी ट्रेनिंग्स के लिए बाहर गई हूँ मैं I have never spent a single dime for traveling. पे टेक क्या है कि नॉन सी एस स्टूडेंट, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ईटी में भी हो, नॉन सी एस ही हो गया, तो नॉन सी एस स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग का क्या टेक है जो आप तो एक बहुत शॉर्ट सिंपल स्वीट वर्ड में बोलूँगी, प्लीज़ जॉइन क्लब्स, तुमको बात करना आएगा. Welcome back to this another special episode of our podcast series Beyond the Lecture Hall, where we celebrate the journeys, hustle, and heart of the amazing minds who have made their mark at HBT. Today's guest is someone who is balanced brains, boldness, and brilliant front-end skill with ease. From grabbing a scholarship and internship at Siemens to landing a placement at Hero FinCorp, from being the student secretary of ASCPC to a 5-star C++ coder at HackerRank. She has walked the talk and then some more. Please welcome someone who's been an inspiration for juniors and a powerhouse of multitasking, respected Ms. Japneet Kaur ma'am, batch 2025, Computer Science and Engineering. Let's dive into her story of code, courage, and college memories. So hello everyone, myself Japneet Kaur. I have completed my graduation from HBTU because अभी नहीं मिली है हम लोग को डिग्री नहीं मिली अभी. तो completed my graduation here at HBTU in computer science and I've currently secured placement at Hero FinCorp. So yeah. The first academic and career section. What motivated you to choose computer science and engineering as your field? So I'll tell you, पहला साल तो मेरा I was in electronics engineering. I wanted to go into computer science, but as rank stated, अभी मैं नहीं जा सकती थी. So first year में I kind of grinded a lot. Then came into computer science. Computer science का, I'll tell you, most of the people who are pursuing computer science is because they want money, because it's like a big money, stream. तो उसी वजह से मेरा भी motivation था. But slowly and gradually as I started coding, started my journey. So I started falling in love with coding, started falling in love with front-end engineering especially because I loved designing, websites. I loved doing everything. मतलब ऐसा होता था कि जैसे सब जा रहे घूमने बाहर तो भी मैं बोलती थी मम्मी पापा से कि नहीं मेरे को नहीं जाना एंड आई यूज्ड टू डिजाइन एंड मैं फ्रंट एंड ही करती रहती थी पूरा टाइम. You are another designer. So next question is, you have been placed at Hero FinCorp. How did that opportunity came your way and how was the process? It was an on-campus placement for me and I actually wasn't expecting a lot from the company because उससे पहले भी I had been rejected from a lot of companies before and it's a very recent placement for me. तो I was not expecting a lot but then हुआ मतलब interview दिया and everything went well. I can communicate very nicely. So they had a lot of, like, I didn't know it at that time, but interview mein communication was a big criteria for them. And they also rejected like 2 or 3 girls on that basis कि communicate नहीं करा था अच्छे से. So that was a major, breakthrough for me. Apart from that, they asked a lot of things that were specially of my genre. So I could answer it perfectly and secure the placement. जैसे बहुत सारे लोगों को फेलोशिप होती है, स्कॉलरशिप रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, क्योंकि एचबीटीयू में मेजॉरिटी बच्चे यूपी गवर्नमेंट वाली लेते हैं, लेकिन आपने साइमंस वाली ली थी.
तो वो एक क्या प्रोसेस है, क्योंकि मैंने वो जब आपके लिंक्डइन पे पढ़ा तो उसके अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी एंड एक्स्ट्रा भी था, मेरे स्टाइपेंड टाइप था। तो वो चीज़ कैसे एक जो अब स्टूडेंट आएगा वो कैसे अप्लाई कर सकता है, और क्या प्रोसेस होगी कि वो अपने चांसेस ज़्यादा बढ़ा सकता है वहाँ पर सिक्योर कर? See, the batch before me, we had like around 5 to 6 Siemens scholars at that time. मेरे batch पे I have no idea how it happened, but I was the only one in the whole entire batch जिसको मिली थी Siemens scholarship. So first of all, on the applying part, as you said, it opens around June or July every year for like all the BTech students, and the only branches that can apply are computer science, IT, production mechanical, and electrical and electronics. So all of you can apply, and ज़्यादा नहीं कुछ, बस if you type Siemens scholarship program, if like the application area is currently they are taking the applications, तो वो आपको दिख जाएगा dashboard पे instantly. तो through there only I applied. I got the information from my own seniors, and उन्होंने भेजा था मेरे को ऐसा group पे कि if you guys want to apply, you can apply. So I just applied it कि हाँ देखते हैं चलो क्या होता है, and हो गया सिलेक्शन. मतलब पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया. मतलब वाज एक्चुअली वेरी रिगरस प्रोसेस. मतलब दे हैड सर्टेन क्राइटेरिया स्टार्टिंग में एप्लीकेशन के, कि यू नो इनकम इतने से कम होना चाहिए एंड ऑल दैट. तो उसके बाद इट वाज लाइक कि मतलब आउट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल यू गेट सिलेक्टेड, एंड देन उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट काइंड ऑफ था. वी हैड अराउंड 180 क्वेश्चंस एंड अराउंड एन आवर टू कंप्लीट इट. तो इट वाज ऑल जेई के क्वेश्चंस ही थे सब, ऑलमोस्ट फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, उसी के लेवल के थे. तो वो एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद देन वी हैड एन इंटरव्यू ऑल्सो. फिर वो इंटरव्यू के बाद आई गॉट सिलेक्टेड. तो इट वाज लाइक अ होल एंटायर 5-6 मंथ का प्रोसेस, आफ्टर विच आई गॉट टू नो. एग्जैक्टली, इट वाज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड आई हैड एक्चुअली लेफ्ट होप कि मेरे को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. तो बट आ गया तो हो गया. यस यस यस. SSP Siemens Scholarship Program. अभी I recently went, अभी मैं just कल ही आई हूँ. I had a farewell program there. तो मैं वहीं के convocation से वापस आई हूँ अभी भी. And मतलब बहुत अच्छा है. मतलब if you get the opportunity there, it's actually life changing. मैम जैसे आपने सीमेंस की इंटर्नशिप भी ली है और वहीं से आपका स्कॉलरशिप भी था, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, एक्स्ट्रा स्टाइपेंड भी था. तो कैसे एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उसे अवेल कर सकता है, क्या प्रोसेस होगा, और इंटर्नशिप भी क्या वहीं से कन्वर्ट हुई थी, तो कैसे हुई थी वो पूरा प्रोसेस? So Siemens scholarship, I got to know about it from my seniors only. तो स्टार्टिंग में आई अप्लाइड कि चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है. एंड सिंस इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ प्राइवेट स्कॉलरशिप ही है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं है. गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का कैसा रहता है कि इफ यू फिल इट अप विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ, तो इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि कुछ अमाउंट तो आ ही जाता है. पूरा नहीं आता फिर भी कुछ तो आ ही जाता है. तो दिस वाज काइंड ऑफ अ प्राइवेट स्कॉलरशिप, तो आई डिडंट नो इफ यू नो इट वाज गोना बी गुड इनफ. बट आई स्टिल अप्लाइड, एंड इट वाज लाइक अ होल 5-6 मंथ का प्रोसेस. बहुत हेक्टिक प्रोसेस था. तो दे सिलेक्टेड वेरी फ्यू पीपल आउट ऑफ लाइक द होल लॉट. आई हैव नो आइडिया हाउ व्हाट क्राइटेरिया देव यूज्ड, बट एक नॉर्मल एप्लीकेशन ही भरा था. इफ एनीवन वांट्स टू लाइक ग्रैब इट, तो कुछ नहीं, बस जून जुलाई के टाइम पे एवरी ईयर दे ओपन अप, एंड देन यू कैन सर्च फॉर Siemens scholarship program and go on their dashboard and apply. So it's not very hard to apply for it. So I just applied through that, and then got the call. फिर document submission हुआ, and then we had our whole aptitude test जिसमें physics, chemistry और maths वगैरह के questions थे. 180 questions थे, around 60 minutes में करने थे. And then उसके बाद if you get selected there, then there was an interview. Interview के बाद we got an email कि हाँ you have gotten selected. So I was the only one in my entire batch जो हुई थी select. तो I would genuinely say Siemens has absolutely changed my life, because इतना life changing, मतलब it's not just scholarship कि यार तुमको पैसा मिल रहा है कल ही, सिर्फ वो नहीं है. मतलब बहुत सारी facilities है. Not just the internship which you are talking about. I grabbed internship from there only, and I did it from DISW Pune, one of the major software companies there in Pune. I did it from there, and not just the internships, we have had a lot of trainings apart from that also. We've had soft skills trainings, we've had mechatronics की trainings. Mechatronics is like a very ऐसा trending सा topic चल रहा है इस time पे, and they taught us about that. उसके अलावा we had separate tutors for every branch कि हाँ CS वाले हैं तो they'll used to teach us Next.js, React.js, everything they used to teach us. We used to have separate classes every week for that as well. Then we used to have soft skills की separate से they used to teach us communication, कैसे you have to convey your thoughts, and that all matters a lot, because once you are in interview, मतलब skills वगैरह तो आपकी ठीक है, चलो मानते हैं कि चलो if you have skills you might get hired, but
communication जब तक नहीं, if you're not able to communicate clearly, even if you have skills, you won't get hired. Communication is very essential. तो वो बहुत सिखाया हम लोग को. अभी recently only I went there for convocation also. बैंगलोर से आई मैं उनके convocation से SSP के. तो it was wonderful and मतलब सिर्फ ये academics वाला side and मतलब ट्यूशन फी नहीं भरते वो तुम्हारी. मतलब मैं जितने भी इवेंट्स के लिए गई हूँ, उनके जितने भी ट्रेनिंग्स के लिए बाहर गई हूँ मैं, आई हैव नेवर स्पेंट अ सिंगल टाइम फॉर ट्रैवलिंग. दे हैव स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग, फुल्ली कवर्ड. तो मेरे दोस्त मेरे को स्पॉन्सर्ड ही बोलते थे पूरा टाइम, बिकॉज आई वाज स्पॉन्सर्ड फॉर एवरीथिंग, एब्सोल्युटली एवरीथिंग फ्रॉम थ्रू माय कॉलेज लाइफ. तो SSP इज वंडरफुल. यू हैव आल्सो वर्क विद बिजबकेट और एक 5-स्टार कोडर भी हैं हैकर रैंक पे, फिर कोड्स कैफे पे मेंटी भी हैं आप. तो आपका टेक क्या है कि नॉन CS स्टूडेंट, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ET में थी, वो नॉन CS ही हो गया, तो नॉन CS स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग का क्या टेक है जो आप अपनी इंटर्नशिप से, या फिर इवन आप इतने हैकर रैंक पे आ चुकी हैं, इतनी रैंक है आपकी, 5-स्टार हैं, तो क्या क्या आप बताना चाहेंगे एक नॉन CS स्टूडेंट? देखो, इफ यू वांट टू लर्न कोडिंग, देयर इज नो सच थिंग एज नॉन CS और CS, बिकॉज कोडिंग तुम कहीं से भी सीख सकते हो. इतने रिसोर्सेज है यूट्यूब पे, इतनी चीजें हैं. मतलब अगर नॉर्मली स्ट्राइवर की भी DSA शीट उठा के तुम करने लगते हो, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग सो मेनी कॉन्सेप्ट्स. बहुत अच्छी शीट है वो. तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड इट्स नॉट लाइक तुमको ऐसा यूडेमी पे या फुराज, मतलब ऐसा फुराज पे सब पैसे दे करके ही कोर्सेज खरीदने एंड ऑल दैट स्टफ. नहीं, उसके अलावा भी यूट्यूब पे देर आर मेनी कोर्सेज विच विल एब्सोल्युटली चेंज योर लाइफ व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग थ्रू देम. नॉट जस्ट DSA, फ्रंट एंड बैक एंड, यू टॉक अबाउट एनीथिंग, सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे. उसी से स्टार्ट करना है. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, हैकर रैंक, कोड शेफ, लीड कोड, ये सब चीजें हैं कि वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यू स्टार्ट अप्लाइंग देम ऑल्सो. तो वो बस उसके लिए कि हाँ कॉन्टेस्ट दो एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग ऑन देम. तो जैसे जैसे, और कोडिंग में कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जब सेकेंड ईयर में थी, मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉन कंसिस्टेंट. मैं बिल्कुल कंसिस्टेंटली काम नहीं करती थी. मतलब ऐसा होता था कि वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू लाइक एब्सोल्युटली ग्राइंड लीड कोड, कोड शेफ और ये सब. एंड आई यूज्ड टू सॉल्व लाइक 30 questions, which if you ask a normal coder is like next to impossible. बोलेंगे कि नहीं होता है, बट कर लेती थी मैं. क्यों? क्योंकि मैं हिंट्स देख के करती थी, which is not feasible at all. तो मैं बोल रही हूँ मेरी गलती रिपीट नहीं करना. मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट करा था, मतलब सेकेंड ईयर के हाफ में लगा लो. आई स्टार्टेड एक्चुअली डूइंग लीड कोड एंड नॉट लुकिंग एट द हिंट्स एंड स्टफ, नॉट लुकिंग एट व्हाट टॉपिक्स आर इन्वॉल्व्ड इन द क्वेश्चंस, एंड देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट. उसके बाद मेरे को समझ में आने लगा कि हाँ, देयर आर अ लॉट ऑफ इंट्रिकेसीज. और उसके अलावा भी कॉन्टेस्ट में, सिंस देयर इज अ टाइम बाउंड थिंग इन कॉन्टेस्ट, राइट? तो जब तक तुम टाइम बाउंड नहीं होगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें काम करती हैं. तो वन सिंपल नॉर्मल एडवाइस टू एनीवन हु इज वांटिंग टू परस्यू कोडिंग इज दैट कि बी कंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. Secondly, be honest with yourself. Don't look at hints. Don't look at what topics are involved. Don't go and look at what other coders have done for that solution. I'm not saying just like absolutely ignore what they have done, क्योंकि वो आप जब देखते हो तो आपको हिंट लगता है कि कैसे और स्मार्टली सॉल्व करना है किसी प्रॉब्लम को. बट वो भी करना है, बट आफ्टर यू हैव मेड योर ओन अटेम्प्ट, 1-2 घंटा जूझ लो उस क्वेश्चन के साथ, उसके बाद करो. दैट वुड बी माय एडवाइस. उसके अंदर नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं लीडर टिप और जितना भी कॉलेज इन्वॉल्वमेंट रहा है. तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू नाउ, हाउ डू यू थिंक यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन, प्रोफेशनली एंड इमोशनली बोथ? गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ईयर में आई वॉज देयर इन एब्सोल्युटली एवरी इवेंट. सब कुछ एक्सप्लोर करा मैंने फर्स्ट ईयर में. ऑटोरॉब, ASCBC और कैलाइडस, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सप्लोर करा मैंने. एंड देन सेकेंड ईयर तक आते आते चोज सम वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो वो मैंने चूज करे. उससे आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, बोथ इमोशनली एंड प्रोफेशनली. ऑटोरॉब की अगर मैं बात करूँ तो आई फाउंड इमोशनली आई फाउंड वेरी सपोर्टिव सीनियर्स देयर, जिनके साथ मैं अभी भी कनेक्ट नहीं हूँ. एंड दे वर नॉट इवन लाइक माई इमीडिएट सीनियर्स. मतलब ऐसे सीनियर्स जो 2-2, 3-3 साल सीनियर है मेरे से, एंड आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद देम. वो अभी भी आते हैं कानपुर, तो आई मीट देम. तो ऐसा एक बॉन्ड डेवलप हो गया है. तो इमोशनली वो चीज़ बहुत अच्छी होती है. दे ऑल्सो कीप गिविंग यू एडवाइसेस. तुमको कुछ दिक्कत होती है तो वो बता देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करो, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा, ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है व्हेन यू आर डूइंग बीटेक. तो इमोशनली वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्रोफेशनली आई वुड से वंस यू स्टार्ट, मतलब जैसे इवेंट्स भी बहुत ऑर्गेनाइज करवाए मैंने, बोथ ASCPC एंड
ऑटोरॉब एससीपीसी में वी हैड एन एलुमनाई मीट, आई थिंक लास्ट ईयर वी हैड एन एलुमनाई मीट, तो वो भी पूरा ऑर्गेनाइज करा था. एंड देन ऑटोरॉब में वी कीप ऑर्गेनाइजिंग workshops also for juniors. तो उसमें once you start speaking, once you start communicating with people, तो आपको एक confidence build होने लगता है ना, people लोगों से बात करना आने लगता है. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम, आई वॉज एब्सोल्युटली इंट्रोवर्टेड. मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं कर पाती थी. तो मतलब ऐसे मेरे को पुश करना पड़ता था कि नहीं, बात करो जाके, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. और मैं नहीं कर पाती थी. देन नाउ व्हेन आई सी अ चेंज इन माई सेल्फ, आई कैन टॉक टू एनीबॉडी. मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है अभी. तो दैट हैज कम बिकॉज आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. इतने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा के, वेंडर से बात कर करके, कुछ सब कुछ कर करके अभी बात करना आ गया है. तो एक बहुत शॉर्ट सिंपल स्वीट वर्ड में बोलूंगी, प्लीज ज्वाइन क्लब्स, तुमको बात करना आएगा. Okay, and what will be a sentence with which will you write in a letter to yourself in first year, and why? Trust in yourself. Trust in yourself. Trust in your skills. Trust that God has a plan, and you will, eventually you will have a good job. You'll have good everything in your life. And don't worry, because I am super sensitive. I overthink a lot. तो मेरी स्किल्स में को मैं खुद क्वेश्चन करती हूँ. मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करता, मैं खुद क्वेश्चन करती हूँ अपने आप को. और फिर वो इतना ज्यादा कभी कभी होने लगता है कि यार आई डोंट इवन नो इफ आई केपेबल इनफ फॉर समथिंग. आई स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट. तो वो चीज नहीं करो. व्हेन यू स्टार्ट ओवरथिंकिंग एवरीथिंग, फिर तो उड़ जाता है दिमाग में से. Okay, ma'am, how did you manage your time across internship, development, coding, and leadership roles? Time management is an issue, but it is also a skill which is very important for everyone. कोडिंग देखो, मतलब कोडिंग एक ऐसी चीज है तो जिसका तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे अगर तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है. तो यू हैव टू हैव एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन इट, तब भी हो पाएगा. तो आई हैड इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स यू स्टेटेड हियर, अदरवाइज नहीं हो पाता है टाइम मैनेजमेंट. तो जैसे आई जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई यूज टू कोड फॉर अबाउट 2.5 hours एवरी डे. देन वो चाहे मैं कहीं से भी करूँ, मैं कॉलेज से घर जाके करूँ, बिकॉज आई वाज आल्सो अ डे स्कॉलर. मैं कॉलेज से घर जाके करूँ, या मैं कॉलेज में बैठे बैठे लाइब्रेरी में करूँ, अपनी क्लास में करूँ, कैसे भी करूँ, आई यूज टू मैनेज 2.5 hours ऑफ दैट. एंड बाकी कॉलेज है तो लीडरशिप स्किल्स जो भी मेरे को जहाँ भी जाना होता था मैं उसी टाइम पे करती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे इवेंट्स होते थे तो उसके टाइम पे यूजुअली ज्यादा काम होता है, तब भी आई यूज टू बी लाइक कि नहीं 2.5 hours हो पा रहा है, मे बी 1.5 hours, बट स्ट्रेच दैट मच. Consistent, right? हाँ, एग्जैक्टली. देन यू कैन कवर इट अप आफ्टर योर इवेंट्स एंड स्टफ आर ओवर. Okay, ma'am, what soft skills did you pick up along the way that you think matter more than technical ones? I would say adaptability and also communication. I've been saying since the entire interview that communication is very, very important. And so is adaptability. If you are not able to adapt in a certain environment, and ये चीज़ लड़कियों के लिए ज़्यादा होती है, because लड़कियां ना जैसे बाहर जाती है तो बहुत ऐसा होता है कि नहीं अडेप्ट कर पाती हैं. लड़के यूजुअली कर ही लेते हैं जैसे तैसे करके, लड़कियां नहीं कर पाती है अडेप्ट. एंड ये हुआ था मेरे साथ जब मैं पहली बारी सीमेंस के एक वर्कशॉप में बाहर गई थी. आई फेल इल सो बैडली. मेरा 103 बुखार था आते वक्त यहाँ पे, एंड मैं बिल्कुल नहीं मैनेज कर पाई थी. तो एक चीज, अडेप्टेबिलिटी इज समथिंग दैट विल गो विद यू लाइक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तुमको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम कानपुर की भी हो तो तुमको यहाँ तो जॉब नहीं मिलने वाली है. तुमको करना पड़ेगा अडेप्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन, एज आई सेड, to not just communicate with people and network with them, but communication is also important for your professional development. Because अगर तुम नहीं contact करोगे, for example, communication also involves कि cold emailing करना है या LinkedIn पे किसी recruiter को message करना है. अगर तुमको communicate नहीं आता, you don't know how to phrase yourself, तो तुम नहीं कर पाओगे. तुम अपना resume भी नहीं build कर पाओगे अगर तुमको ये नहीं करना आता होगा. Resume also needs to be phrased properly, जिससे recruiters का ध्यान जाता है उस पर. तो वो चीज भी नहीं कर पाओगे. तो कम्युनिकेशन एंड अडेप्टेबिलिटी आर प्रोबेबली 2 of the most important things, I would say, जो सॉफ्ट स्किल्स में सबके काम आएंगी. सो प्लीज. The next segment is tech and passion projects. So what drew you towards the front end development part? एज अ सेड, मुझे बहुत पसंद था ऐसा वेबसाइट डेवलप करना. जब मैं बहुत छोटी भी थी ना, तो आई यूज्ड टू सी ऑल दोस वेबसाइट्स एंड ऑल, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार कैसे बनाते होंगे ये, इतना इंटरैक्टिव होता है.
एग्जैक्टली इतना इंटरेक्टिव होता है, कैसे बनाते हैं ये? आई स्टिल रिमेंबर मैं 8th क्लास में थी आई गेस, और मैंने कहूत का इंटरफेस देखा था उस टाइम पे। वो सो इंटरेक्टिव एंड सो इंट्रीगिंग टू मी एट द सेम टाइम, बिकॉज मतलब इतना सब कुछ हो रहा था एट द सेम टाइम उसमें, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि कैसे होता है ये? एंड देन आई आस्क्ड दिस टू माय ब्रदर, वन ऑफ माय कजन ब्रदर्स, ही इज आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी। तो मैंने उनसे पूछा था उस टाइम पे, एंड ही यूज्ड टू बी लाइक कि समझोगी जब भी बड़ी हो जाओगी, अगर समझना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक ओके, तो दैट आल्सो फ्यूल्ड माय पैशन टुवर्ड्स सीएसई। तो तब मैं देख के आई यूज्ड टू बी वेरी इंट्रिग्ड। तो उसके बाद जब इसलिए जब स्किल्स जब स्टार्ट करी डेवलप करनी, एंड व्हेन आई हैड वाज ऑन द क्रॉस रोड्स कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है, बैक एंड में जाना है, फ्रंट एंड में जाना है या कोड ऐसे करना है, तो आई थॉट कि यार चलो फ्रंट एंड ट्राई करते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन दैट। तो आई ट्राइड इट एंड आई लव्ड इट, एंड दैट्स व्हाई। So any future plans, startups, masters इसमें या upskills, exploring anything front end deeply? अभी तो करंटली हीरो फिनकॉर्प में हुआ है सिलेक्शन, तो आई एम सी अभी वहीं जाने का प्लान है। उसके बाद आई वाज थिंकिंग कि आफ्टर अ व्हाइल मे बी आई वुड लाइक टू परस्यू यूपीएससी एज एवरी अदर मिडिल क्लास फैमिली किड वांट्स टू। आई आल्सो वांट टू डू दैट समडे, बट मे बी नॉट नाउ। Have you worked on any personal or team-based front-end project that are really good or you are proud of? टीम बेस्ड फ्रंट एंड प्रोजेक्ट मैंने जो अभी सीमेंस में करा था इंटर्नशिप के टाइम, इट वाज अ वेरी वंडरफुल प्रोजेक्ट वी हैड। वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट इन द 2 months टाइम गिवन, बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक वी वर 4 टीम मेंबर्स along with me. We were 4 people, and 2 of us were interns and 2 of them were there already placed there. So we were a team there. And abhi third year mein when I interned with Siemens, I had a really wonderful project. I along with 3 of my other team members, we had 2 interns in that, me and one more girl, and we had to build a website जिसमें मतलब ऐसा इंटरैक्टिव क्विजेज होनी थी। नॉट जस्ट इंटरैक्टिव क्विजेज, इट वाज लाइक कि एक ऐसा रियल टाइम क्विज होता था कि मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी चल रही है, एंड देन उसके साथ में यू कैन डू क्विजेज, मोस्टली कॉर्पोरेट और एजुकेशन सेंटर्स के लिए था वो। कि एंड वी ऑल्सो हैड टू बिल्ड अनदर फीचर इन इट, कि मतलब ऐसा फिजिकल फीचर था वो जिसमें ब्रेल वगैरह का यूज करके फॉर ब्लाइंड किड्स ऑल्सो। तो वी वर वर्किंग ऑन दैट, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज इवन दो वी कुडंट लाइक कंप्लीट इट प्रॉपरली, पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, बट इवन देन मतलब जितना भी प्रोग्रेस वी मेड, माय मैनेजर वाज सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ अस, जितना भी हम लोग ने किया, बिकॉज 2 मंथ में इतना भी पॉसिबल नहीं था, बहुत करा हमने उसमें। एंड पूरा फ्रंट एंड डिजाइन करा, ऑलमोस्ट द एंटायर बैक एंड एज वेल, and the video conferencing part, and the quizzing part, everything was practically done apart from the wo jo braille wala part tha, that we couldn't do because of time constraint. But I'm really proud of that project because it was functional, and they even said ki once we pursue this project professionally, we are going to release it as well. So if and when it comes out, I would probably would be on the makers panel of that as well. So yeah, waiting for that. ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई। अब वी आर इन आवर फन सेगमेंट्स दैट इज फुल ऑफ गेम्स। द फर्स्ट इज रैपिड फायर राउंड। कैंटीन फेवरेट खाना? कोई एक डिश। हाँ, आई थॉट पर्सन पूछ रहा हूँ, अच्छा खाना। कैंटीन फेवरेट यार कॉफी, और कुछ नहीं अच्छा लगता मुझे कैंटीन का। प्लेसमेंट डे इन वन इमोजी। वो वाला इमोजी है ना, जिसमें ऐसा चश्मा लगा होता है, वो वाला, उसको हटा के ऐसा, वो वाला इमोजी। क्लब यू विल मिस द मोस्ट। ऑटोरॉब। लास्ट मूवी वॉच्ड। लास्ट मूवी लास्ट ऑफ अस। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू। इमोशनल। Okay, so the next is this or that. We will give you 2 choices and you have to select one. Code or chill? कोड। Front end or back end? फ्रंट एंड। Coding jam or coffee break? कॉफी ब्रेक। कॉफी ब्रेक। Okay, coding grind or auto off session? टफ वन। काफी deadly combination. बहुत हिटली है। कोडिंग। we'll have to go there. Online hackathon or offline? Offline. Any day. Okay, Siemens offer or Hero FinCorp final offer? अब हीरो वाले ना देख ले, मार खाऊंगी सीमेंस। Okay, the next is college awards. ये आप अपने किसी भी बैचमेट्स या फ्रेंड को दे सकते हैं। तो most dependable person you work with? डिपेंडेबल।
डैम दिमाग में ही नहीं आ रहा कोई. This kind of explains the question. And it actually does. नाम लेना पड़ेगा. Shit. Which is special feature and Mukund Bajpayee. most likely to call you during exams. Beena Palsi. Most wholesome junior. Most wholesome junior. Deepak Pandey. Best mentor or senior. Pradyum Pal sir. Okay. Club partner in crime. Club partner in crime. Chevy Pandey. Okay. The next is never have I ever college edition. So never have I ever pulled an all-nighter before a submission. I have, obviously. Everyone does. Okay. Never have I ever joined a meeting just to marketing. Always. Absolutely always. Never have I ever written hello world just to look busy. Every time I don't want to talk to a person, this is what I do. Never have I ever submitted the wrong file in a rush. Yes, I have. Once I submitted someone else's assignment and Okay, never have I ever wanted to drop out but didn't. yes, I have wanted to drop out. Never have I ever fangirled over a senior's LinkedIn post. No. The next segment, you have to rate things 1 to 10 in rapid fire. Coding culture in non-CS branches. 4. The taste of mess food. I have not had one. I am day scholar. Big hostler chapter. Acha. 3. Placement pressure during final year. 9. LinkedIn scrolling obsession. 7. The energy in Autorob before a workshop. 10. Last minute assignment teamwork. 10. Front-end debugging at 2 a.m. 5. Your own glow up in 4 years. 10. Okay, then last is vibes and wrap up. We will wrap up this segment. What is one defining memory of your college life? Defining memory has to be Autorob. Especially when Pradyum sir and Avi sir जब वो जा रहे थे मतलब अपना graduation complete करके and me and 3 of my other Autorob वाले mates, we gave them ऐसा poster type का दिया था उनको गिफ्ट में एंड देन उनके रिएक्शंस देख के ना दैट वाज सच मेमोरेबल. बहुत होलसम था एकदम. मतलब इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक एट द सेम टाइम बिकॉज वो जा रहे थे एंड वी न्यू कि अभी बहुत कम मिलना होगा एंड वी वर वेरी अटैच्ड टू देम. तो Okay. Looking ahead, what's something you are really excited about? I am excited about my professional life now, even though I know it's going to be hectic. बहुत hectic होने वाली मुझे पता है. Roller coaster ride होगी. Exactly. But I'm still excited for it. Excited to be independent as we are. What's your message to juniors, especially from CS and non-CS branches pursuing tech? Okay, so my advice to them would be कि यार मतलब क्लब्स वगैरह एक्सप्लोर करना है करो, ऑब्वियसली करो. बट द मिस्टेक आई मेड वाज कि मतलब स्टार्टिंग के 2 साल में आई काइंड ऑफ डिड नॉट was not consistent, did not touch tech that much. वो नहीं करो. मतलब start coding, start building your professional life, professional portfolio first year से ही. There is nothing called कि बहुत जल्दी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. Start building it from the first day. I'm not saying कि फेस्ट में नहीं जाओ, क्लब नहीं करो. Obviously करो, मैंने भी बहुत करा है. But if you're wanting to pursue coding, just know that if you think you are good enough, there are hundreds more like you. So don't think कि मतलब इतना कर लिया तो बहुत है. There is nothing like बहुत in tech. So keep grinding for your tech journey, and apart from that, keep enjoying your life also. दोस्त वोस्त बनाओ, नहीं भी बनते तो कोई बात नहीं, मेरे भी नहीं बने. But keep building your tech portfolio, keep having fun. बस ये नहीं करना कि don't get stuck on just one thing कि मतलब सिर्फ कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग करो, ये नहीं करो. या सिर्फ क्लब कर रहे हो तो सिर्फ क्लब करते रहो, ये भी नहीं करो. Do everything and manage your time accordingly. That is what I like. Lastly, how would you like to be remembered here at HBT? देखो जानते तो ऑलमोस्ट सभी है मेरे को. नाम नहीं जानते होंगे, बाय फेस तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं मेरे को. बट आई वुड स्टिल लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज द फन एनर्जेटिक सीनियर who would give you advice at any point of time you require. So yeah. So that is it from the interview, and हमने एक नया चीज स्टार्ट किया है कि
we will exchange the flashcards as a memory. इसमें हम एक दूसरे के लिए मैसेज लिखे होंगे टीम के लिए, तो मैम वो साइन करके exchange. Time. And that brings us to the end of this amazing conversation with Ma'am. From the silent grind behind her internship to her love for front-end design and her leadership journey, we hope her story left you feeling as inspired as we are. Japneet ma'am, as you step into the next chapter, may your curiosity never settle and your journey stay as dynamic as your code. On behalf of the entire team, thank you for being such a valuable part of our campus and for leaving behind a legacy that speaks dedication, brilliance, and warmth. To our listeners, stay tuned. We will see you in the next one. Thank you for having me. हाँ बगल में फोन रख के बाद में एडिट करना पड़ेगा।